Imagine a world where your iPhone says assembled in India, your electric car battery is made in Karnataka, and the fighter jets flying over Europe have parts made in Gujarat. This isn't a 2050 dream, it's happening right now in 2026. For decades, the world has only one factory, that is China, but the factory of world is changing its address and it's moving to India now. Is India finally ready to become the next global manufacturing superpower, or is this just another high bubble? Let's find out. नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बदलाव की जो शायद आपने महसूस किया होगा। हमारे गैजेट्स, हमारे मेडिसिन और यहाँ तक कि हमारे कार पर भी अब मेड इन इंडिया का जो टैग है वो बढ़ते जा रहा है। इन दिस वीडियो वी आर डाइविंग डीप इनटू द राइज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। विल टॉक अबाउट हाउ इंडिया जंप फ्रॉम a सर्विस सेक्टर giant to a serious contender in the world of factories. We will look at the data, the direct secret, the China plus one strategy and the most important कि क्या ये ग्रोथ हमारे जॉब और पॉकेट को अफेक्ट करेगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियन बिगेस्ट इकोनॉमिक शिफ्ट इन डेकेड। So friend, now let's talk about the importance of topic. So why does this matter for India? So India has the world largest young population. To give them job, we can't just rely on IT and software. We need mass employment and factories because they are the only ways to hire millions of people at once. When a factory open, it doesn't just hire engineers. It needs operators, drivers, security and logistics staff. So if we talk about why does this matter for the world? So do you remember the supply chain chaos during the COVID-19 or how the Russia-Ukraine war and Middle East tension made everything expensive? The world realized that putting all eggs in one basket, that is China, is very dangerous. So global giants like Apple, Samsung and Tesla are now looking for a plan B, and that plan B is India. For example, Apple now produces over 15 to 20% of its iPhone in India. That's a massive shift from just 1% a year ago. तो आइए अब हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का हमेशा से एक वीक स्पॉट रहा है। अगर हम 1991 एरा की बात करें तो हमने डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विस पे जंप मार दिया और मैन्युफैक्चरिंग बीच में ही रह गया। Then the restart, that is 2014, everything changed with the Make in India initiative launched by PM Modi. The goal was simple: make India a global manufacturing hub. The real question is 2020. COVID-19 was the turning point. Government realized resilience is more important than low cost. And the game changer is the PLI, that is Production Link Incentive Scheme. गवर्नमेंट ने कहा आप इंडिया में बनाओ, हम आपको कैश इंसेंटिव देंगे। बेसिकली द मोर यू प्रोड्यूस द मोर यू अर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट। आज सिचुएशन ये है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ लगभग 5.2% टू 6% पे चल रहा है। अगर हम फरवरी 2026 का डेटा पे बात करें तो हाउ इट्स वर्क टुडे, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हम अब सिर्फ मोबाइल असेंबल नहीं कर रहे हैं, हम कंपोनेंट्स लाइक पीसीबीज, बैटरीज, चार्जर्स भी यहाँ बना रहे हैं। मोबाइल इंपोर्ट्स 77% नीचे गिर चुका है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो इंडिया अब सिर्फ वेपन खरीदता नहीं है, बेचता भी है। हमने करीबन 38,000 करोड़ और एक डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है 2025 से 26 में। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें जो कि गोल्ड है ये मॉडर्न वर्ल्ड का, सो विद सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इंडिया इज सेटिंग अप फैब चीफ फैक्ट्री इन गुजरात एंड असम। So that is the major shift for our Indian economy. तो दोस्तों अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं कि कौन कौन से सेक्टर्स में हमारा जो ग्रोथ है वो रिमार्केबल है, मतलब कि ये जो ग्रोथ है वो सबसे बढ़िया है, तो मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पे मोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स में हम अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम डिफेंस की बात करें तो हम एक अच्छी मात्रा में जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग वो बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा जो ऐसे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ट्रेड डिफिसिट में चल रहे थे एक लंबे समय से, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग कम करते जा रहे हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो अभी मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताया कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक न्यू गोल्ड की तरफ से काम कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे होंगे जो भी प्रोडक्ट है, चाहे हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर चाहिए फॉर द वर्किंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं बीच में आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ फाइट विद चाइना और उनका जो डिस्प्यूट था उसकी वजह से वहां से सप्लाई चेन बंद हुआ था, तो जितने भी फोन है उनके दाम बढ़ने लगे थे, तो वो बार बार अफेक्ट होता है। इसलिए हम लोग वहां पे सेमीकंडक्टर खुद से इंडिया में बनाना स्टार्ट किए हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज की बात की जाए, बिकॉज अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट्स हैं और जितने भी अभी मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं उसमें हमें हमेशा से बोला जा रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करना है। तो बिकॉज दैट हमें पता है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज का डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज होने वाला
है तो हम पहले से ही वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो ग्रोथ है ये दिखा रहा है कि हम अभी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कंसिस्टेंट वर्क करते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सब कुछ इतना आसान नहीं होता। कुछ बड़े चैलेंजेस आज भी हैं। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप के बारे में बात करें तो इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी बहुत हाई है। दैट इज अराउंड 13 टू 14% ऑफ जीडीपी कंपेयर टू चाइना और वियतनाम दैट इज 8 टू 9%। सामान फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचाने में हालत खराब हो जाती है। स्किल मिसमैच, हमारे पास लोग तो हैं पर क्या वो एआई ड्रिवन स्मार्ट फैक्ट्रीज में काम करने के लायक स्किल्ड हैं? रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे ग्रेजुएट को रीस्किल करने की जरूरत है। रेड टैप, बिजनेस शुरू करना पहले से आसान है पर आज भी लैंड एक्विजिशन और लोकल रेगुलेशन में काफी बाबूगिरी फेस करनी पड़ती है। तो अब आते हैं असली बात पे। व्हाई द गवर्नमेंट पुशिंग सो हार्ड? तो अगर हम स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी की बात करें तो अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो हम उनके सामान पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। द चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। दे आर डिस्किंग देयर डिपेंडेंसी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन जीतेगा। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया की मिडिल क्लास और एमएसएमई जो कि स्मॉल बिजनेस हैं उनको सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि वो बड़ी कंपनी के लिए कंपोनेंट सप्लाई करेंगे। तो इफ वी टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो आने वाले 5 से 10 सालों में क्या होगा? टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 25% हिस्सा बने, जो कि अभी हम 15 से 17% के आसपास है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो इंडिया विल लाइकली बिकम द वर्ल्ड एक्सपोर्ट हब फॉर ग्रीन एनर्जी, दैट इज सोलर एंड ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑल्सो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट अगर हम बात करें रिस्क की, तो ऐसे कुछ रिस्क भी हैं जो हमें मिटिगेट करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर सके। तो अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल गैप को 2030 तक फिक्स नहीं किया तो ये कंपनीज वियतनाम या मैक्सिको भी शिफ्ट हो सकती हैं। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। टू समराइज, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अब सिर्फ स्लोगन नहीं है, रियलिटी बन चुका है। फ्रॉम आईफोन टू फाइटर जेट, मेड इन इंडिया इज बिकमिंग ए ग्लोबल ब्रांड नाउ। चैलेंज तो है पर मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि इसे रोकना मुश्किल है। इंडिया इज फाइनली बिल्डिंग इट्स ऑन इंडस्ट्री मसल नाउ। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सच में चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ पाएगा या फिर हमें सिर्फ असेंबलिंग तक ही लिमिट रहना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे डीप डाइव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।